اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت احادیث ذخیرہ سے بھی ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت امت کے اجتماع سے بھی ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت اصحاب رسول کی جماعت سے بھی ثابت ہے، اسی طرح امت کے اجتماع سے بھی ثابت ہے۔ جب اس پیغمبر کے ختم نبوت کو قرآن نے بھی مان لیا، حدیث نے بھی مان لیا، صحابہ کرام کے اجتماع نے بھی مان لیا، اللہ کے پیغمبر ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام احباب نال تھی اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ختم نبوت کا عنوان یہ اسلام کا اہم ترین عنوان ہے، اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ میرے عزیزو، اگر آدمی ختم نبوت کے اوپر ایمان نہ لائے، اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کی تصدیق نہ کرے، آدمی چاہے اسلام کے سارے اعمال کرتا رہے، سارے احکام کے اوپر عمل پیرا ہوتا رہے، نہ اس کی نماز کا اعتبار ہوگا، نہ اس کا روزہ کامیاب ہوگا، نہ اس کا حج کامیاب ہوگا، اور نہ ہی اسی طرح اللہ کی وحدانیت پہ اس کی کامیاب ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں نامکمل ہو جائیں گی۔ کیونکہ میرے عزیزو، جس چیز کے واسطے اس کل کائنات کو سجایا گیا ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کریم علیہ السلام ہیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت محفوظ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے ختم نبوت لوگوں کے دلوں کے اندر پیوند ہے، تو نماز بھی کامیاب ہوگی۔ اگر ختم نبوت مکمل ہے تو روزہ بھی کامیاب ہوگا۔ اگر اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت مکمل ہے تو آدمی کے تمام دین کے احکام کامیاب ہوں گے۔ اگر آدمی اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت کو نہیں مانتا تو نہ اس کا روزہ ہوگا، نہ اس کا حج ہوگا، نہ اس کے زکوٰۃ ہوں گے، اور اسی طرح دین کے بقیہ سارے بھی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے رائگاں چلے جائیں گے، یہ سارے کے سارے بے فائدہ چلے جائیں گے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت احادیث ذخیرہ سے بھی ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت امت کے اجتماع سے بھی ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت اصحاب رسول کی جماعت سے بھی ثابت ہے، اسی طرح امت کے اجتماع سے بھی ثابت ہے۔ جب اس پیغمبر کے ختم نبوت کو قرآن نے بھی مان لیا، حدیث نے بھی مان لیا، صحابہ کرام کے اجتماع نے بھی مان لیا، اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت کو امت کے لوگوں نے بھی اجتماع کر لیا، اب اس پیغمبر کے ختم نبوت کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پیغمبر کے ختم نبوت کے اوپر دلائل پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے سامنے قرآن اور حدیث سے وضاحتیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے عزیزو، اب اس بات کو توجہ کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت کو بیان کرنا عبادت ہے۔ اب یہ عبادت کس طرح ہے میرے عزیزو؟ جس طرح اللہ کے پیغمبر کے بچپن کو بیان کرنا عبادت ہے، رسول اللہ کی سنت کو بیان کرنا عبادت ہے، اللہ کے پیغمبر کے لڑکپن کو بیان کرنا عبادت ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ پیغمبر کے ختم نبوت کی مثال اس تمام کے دین کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے ختم نبوت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی چلتا پھرتا ہے، جو انسان چلتا پھرتا ہے۔ اب یہ انسان کس چیز کا نام ہے؟ تو میرے عزیزو، انسان دو چیزوں کا نام ہے، توجہ، انسان
दो चीजों का नाम है, एक है उसका रूह और एक है उसका जिस्म। अगर रूह इंसान के साथ है, जिस्म उसके साथ है, ये दो चीजों को मिलाकर फिर जाके इंसान मुकम्मल बनता है। अगर रूह को निकाल दिया जाए, रूह को अल्लाह अपनी तरफ गस्ब कर ले, रूह को अल्लाह अपनी तरफ कब्जा कर ले, ये इंसान नहीं रहता। इस इंसान के हाथ नहीं रहते, कान नहीं रहते। क्यों? ना इन्हें कान ये सुनने के लायक हैं, ना हाथ पकड़ने के लायक हैं, ना पांव चलने के काबिल हैं। अब इन तमाम चीजों का ताल्लुक उस वक्त इंसान के जिस्म के साथ था जब इंसान के जिस्म के अंदर रूह बाकी थी। रूह निकलने की देर है, इंसान के तमाम आज़ा नाकारा हो गए। अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबुव्वत की मिसाल भी मेरे अजीजों इस पूरे के पूरे दीन के अंदर इंसान की रूह की तरह है। यानी अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबुव्वत अगर यहाँ महफूज है तो कुरान का भी अल्लाह अजर और सवाब अता करेंगे। अगर अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबुव्वत महफूज है तो कुरान का भी एतबार किया जाएगा, नमाज भी मुकम्मल होगी, तिलावत भी मुकम्मल होगी। इसी तरह अगर अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबुव्वत नामुकम्मल है, अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबुव्वत महफूज नहीं है, लोगों के दिलों के अंदर इस अकीदे की कोई वजाहत नहीं है, तो आप ये समझ लें कि अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबुव्वत का अगर लोगों के दिलों के अंदर ये यकीन नहीं है तो आदमी के तमाम आमाल की मिसाल, तमाम के तमाम नेकी की मिसाल, तमाम के तमाम उसकी इबादत की मिसाल उस आदमी की तरह है कि जिस आदमी से रूह को निकाल लिया जाए तो वो आदमी जिस तरह नाकारा हो जाता है, ना उसके हाथ काम करने के हैं, ना उसके कान सुनने के काबिल हैं, और इसी तरह ना उसके पाँव चलने के काबिल हैं। जिस तरह वो इंसान नाकारा हो जाता है, अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबुव्वत को अगर दीन इस्लाम से निकाल लिया जाए तो आदमी के तमाम आमाल नाकारा हो जाते हैं। ये अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबुव्वत को बयान करने की वजह है। अब बाज लोग ये भी कहते हैं कि जब अल्लाह के पैगंबर की खत्म नबुव्वत मेरे अजीजों कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, असहाब रसूल की जमात से भी साबित है, उम्मत के इज्तिमा से भी साबित है, फुकहा ने भी इसको तस्लीम किया है। अब इस पैगंबर के खत्म नबुव्वत के ऊपर दलाइल पेश करने की जरूरत क्या है, वजाहतें पेश करने की जरूरत क्या है, लोगों के सामने बयान करने की जरूरत क्या है। तो मेरे अजीजों, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि जिस तरह अल्लाह के पैगंबर की 63 साल जिंदगी को बयान करना इबादत है, अपने ईमान को तक़वियत देना मकसूद है, अपने ईमान को राहत देना मकसूद है, अपने कल्ब को खुश करना मकसूद है। यही मिसाल है खत्म नबुव्वत को बयान करने की कि जिस तरह अल्लाह के पाक पैगंबर के बचपन को बयान करना इबादत है, अल्लाह के पाक पैगंबर की विलादत को बयान करना इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्के सदर को बयान करना इबादत है, अल्लाह के पैगंबर की जवानी को बयान करना इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के जमाने को बयान करना इबादत है, नबुव्वत के बाद वाले जमाने को बयान करना इबादत है, अल्लाह के पैगंबर की मक्की जिंदगी को बयान करना इबादत है, रसूलुल्लाह की मदनी जिंदगी को बयान करना इबादत है, अल्लाह के पाक पैगंबर के विसाल को बयान करना इबादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह के पाक पैगंबर की ये 63 साल जिंदगी को जिस तरह बयान करना इबादत है, सवाब है, अजर है, अल्लाह की रजा है, अपने दिल को तक़वियत पहुंचाना मकसूद है, अपने दिल को राहत पहुंचाना मकसूद है। तो मेरे अजीजों, यही मिसाल है अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबुव्वत की। खत्म नबुव्वत को बयान करके लोगों के दिलों को महफूज करना, लोगों के अकायद को महफूज करना, लोगों के ईमान के ऊपर पहरा देना और अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबुव्वत को बयान करके अल्लाह की रजा हासिल करना, यही इसकी मिसाल है। अब मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फुरकान हमीद के अंदर क्या बयान करते हैं, मा काना, ये बहुत बड़ा अहम मजमून है। खत्म नबुव्वत ये इतना अहम तरीन उन्वान है कि अगर आदमी सारी की सारी जिंदगी, तवज्जो, अगर आदमी सारी की सारी जिंदगी दीन के तमाम अहकाम के ऊपर अमल पैरा हो जाए, आंख के पलक के बराबर भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना करे, कुरान पढ़े, ज़कात अदा करे, रोजा रखे, नवाफिल पढ़े, इशराक पढ़े, अवाबीन पढ़े, चाट पढ़े, ये सारे के सारे आदमी इबादत कर ले, अल्लाह की रजा हासिल कर ले, कुरान का कारी बन जाए, दीन का दावा करने वाला बन जाए। मेरे अजीजों, अगर उस आदमी के पास अल्लाह के पैगंबर की खत्म नबुव्वत नहीं है तो अल्लाह के पैगंबर की खत्म
ختم नबूवत को बयान नहीं करता, लोगों के सामने जाकर इसको उजागर नहीं करता, तो आप ये समझ लें कि इसकी तमाम की तमाम इबादतें, तमाम की तमाम रियाजतें, तमाम के तमाम इसकी, तमाम के तमाम इसने जो अपनी जिंदगी के अंदर जिन कामों को सर अंजाम दिया है, ये सारे के सारे उसके राहगर चले जाएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, जब कोई आदमी इमारत खड़ा करता है, अब उस आदमी की, अब जब आदमी वो इमारत खड़ा करता है तो इमारत की जो बुनियाद होती है, अब ये बुनियाद मजबूत होगी, बुनियाद महफूज होगी तो इमारत खड़ी हो सकेगी। अगर बुनियाद मजबूत नहीं है, बुनियाद उसकी नाकाबिल है, तो ये सारी की सारी इमारत नीचे मुनहदम हो जाएगी, नीचे गिर पड़ेगी। अल्लाह के पैगंबर के खत्म नबूवत की मिसाल भी मेरे अजीजों इस दीन की मिसाल इसी तरह मिसाल है। अगर पैगंबर के खत्म नबूवत महफूज है तो दीन के तमाम अरकान, दीन के तमाम अहकाम महफूज हैं। यही वजह है कि आज मेरे अजीजों बाज़ इलाकों के अंदर इस माने का पता नहीं होता कि खातमुन नबिय्यीन का या माना क्या है, या अल्लाह के पाक पैगंबर को अल्लाह ने जो बहुत बड़ा मकाम अता किया है वो कौन सा मकाम है। ये मेरे और आपके जिम्मे है कि हम अल्लाह के पाक पैगंबर की खत्म नबूवत को हर मुसलमान के दिल के अंदर जाके इसको उजागर करें, इसके बारे के अंदर जाके लोगों के सामने जाके वजाहतें करें। अल्लाह के पाक पैगंबर की खत्म नबूवत के बारे के अंदर अल्लाह कुरान करीम के अंदर ये वाज़े ऐलान करता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम में से